video you sent me, that you, I mean, in the video ये बोला गया था कि भाई आप you visit such memories which gives you pain and you forgive. Okay. Right. Now, what if I am afraid to visit some memory? I mean, to recall. I mean, maybe the memory is too painful to relive. Right. Okay. And what if, how can I forgive myself? I mean, most of the things that in the past that I am, I mean, there is a, क्या बोलते हैं, experience जो किया है. Yes, some painful memories are there. Right. If I think in deep, I think the reason behind I let that happen. Right. Okay. So most of the time. Okay. So to forgive myself, I mean, how can I forgive? And myself, it is getting very difficult for me. I am trying that meditation. I can't do it for more than 5 or 10 minutes. Fine. Number one. Okay. Fine. Okay. The most, problem is that at what I said that किसी मेमोरी में जाने के लिए मतलब डर लगता है. Full and yes, to revisit it. Yes, revisit it. Right. I understand these words. So, so when we think about revisiting certain things. Yes. Right. Yes. When we think about revisiting certain things, it's like going back into the past. Yes. And thinking about a situation or a person. Yes. Could be anything. Obviously, situations are connected with people itself. So the thing is, the hurt is there within me somewhere. Didn't get you. Pardon? Didn't get you. The heart? The hurt is there within me somewhere. Yes. It has not been released first. Yes. First step is release it. Second step is heal it. So it has not been released also and it has not been healed also. That means अगर मेरे को एक चोट लगी हुई है. I got your point. So how can I, Yeah, we're coming to that. Okay. We're coming to that. So we'll just try to find out what exactly is the depth and how does it work exactly, the mechanism. Okay. So the thing is, जब तक हम इसको diagnose नहीं करेंगे, we have to, both of us have to become a doctor and we have to diagnose this problem. But the only way to diagnose this problem is to be detached from that. Now, how do I become detached? Well, the only way to get detached is to realize that my life is like a movie, is like a drama. I'm an actor in it. I've got a part to play in this role, and every role which I play, जो भी मैं खेलता हूँ, किरदार खेलता हूँ, उसमें या तो मेरे लिए कुछ सीखने के लिए होता है, या तो फिर किसी और के लिए कुछ सीखने के लिए होता है. फर्स्ट स्टेप. ओके. सो व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, मैंने उस किरदार से, जब भी मैं इस चीज को विजिट करूं, वो सिचुएशन को विजिट करूं या वो पर्सन को विजिट करूं, तो मैंने उस किरदार में से क्या सीखा, डिटैच होकर के, अपनी लाइफ की मूवी को आगे रख करके, ये मूवी स्क्रीन पे चल रही, मेरे माइंड की स्क्रीन पे चल रही मूवी, एंड उसको सामने रख करके मैंने उस सिचुएशन या उस पर्सन से क्या सीखा, मैं उस नेगेटिविटी में भी क्या पॉजिटिविटी क्या निकाल सकता हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि सारे मजदूर आ रहे हैं, आपने जैसे मेरे को बताया इस कॉल में पहले कि सारे मजदूर आ रहे हैं, मालदा में आ रहे हैं, सारे नीचे उतर रहे हैं वहां पर. तो देखा जाए तो ये तो बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन है. राइट. किसी के लिए नेगेटिव है, पर किसी के लिए क्या है, हाँ, पॉजिटिव है कि कोई खड़ा आ रहा है. एग्जैक्टली, है ना. सो नेगेटिविटी में भी क्या देख सकते हैं हम, हाँ, पॉजिटिविटी देख सकते हैं. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को अपने आप को सिचुएशन से हटाना पड़ेगा. क्योंकि अगर मैं अपने आप को सिचुएशन में रखूं, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो और स्प्रेड हो जाएगा यहाँ पर वायरस, तो ये तो ठीक नहीं कर रही गवर्नमेंट, राइट. लेकिन अगर मैं अपने आप को हटा दूं उसमें से, दैट मीन्स आई रिमूव माई ईगो इन दैट, रिमूव माई सेल्फ कम्प्लीटली, एंड देन आई पुट माई सेल्फ इन दैट अदर सिचुएशन, अदर पर्सन सिचुएशन. आई रियलाइज ये तो बहुत अच्छा हो रहा है एक्चुअली, और इस सिचुएशन में मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ.
आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, व्हाट्स एवर हैपेंस अराउंड मी, सिचुएशन जैसे भी बनती है, लेकिन अगर जब तक मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं अपने आप को ठीक रखूं, तब तक मैं एवरीथिंग इज फाइन. सो सिमिलरली when I go back into my past, when I face that past or face that situation or face that person in my life, that could be a person's close family member's issue, could be somebody who got sick, could be somebody who had an accident, could be somebody who went through financial issues, because of which I also had to go through ups and downs, right? So when I look at that situation, and if I made a right decision or a wrong decision at that point of time, एंड उस चीज का अगर मेरे पास में गिल्ट है, या उस चीज का मेरे पास में एक बैड फीलिंग है, काश मैंने इसे ना किया होता, सो आई नीड टू रियलाइज वन थिंग कि मैंने अपने तरफ से उस समय पॉजिटिव सोचा था. हो सकता है मेरे पास में इतनी समझ ना हो कि उस समय मैं किसी और की तरफ से पॉजिटिव सोच ना पाया हूं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कोविड के केस में, है ना, कि लेबरर्स आ रहे उनके लिए तो पॉजिटिव हो गया, मेरे लिए चाहे नेगेटिव हो. सो उस समय मैं कर नहीं पाया, नो प्रॉब्लम. लेकिन मैंने ये सीखा है उस सिचुएशन से कि मैं सिर्फ अपने तरीके से ना सोचूं, औरों के तरीके से सोचूं, तब जाकर मैं किसी की हेल्प कर पाता हूं, या किसी को मैं मदद कर पाता हूं, या मैं राइट डिसीजन ले पाता हूं. एक तो ये चीज सीख सकते हैं उस पास में जाकर के. दूसरा क्या सीख सकते हैं कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि हर एक सोल का, बिकॉज आप सुन रहे हैं मेरे सारे टेलीपॉडकास्ट, तो आपने ये समझा होगा कि everybody is a soul, right? Right. So every soul has brought their destiny with them, and I am nobody to decide their destiny. For example, एक आत्मा जो कि आपके फैमिली में आई है, suppose, could be your brother, could be your sister, could be your father, could be your mother, could be your daughter, could be your son. That is also an individual soul. Right. That individual soul has got its own mind, has got its own intellect, that is intelligence, and has got its own sanskar, that means habit. तो ये तीनों चीजें लेकर के वो आत्मा आपके घर में आई है, एंड आपने उसको क्या प्रोवाइड किया? आपने उसको एक फिजिकल बॉडी प्रोवाइड करी, इफ इट्स अ चाइल्ड इन योर फैमिली. सो दैट सोल हैज ओनली रिसीव्ड द फिजिकल बॉडी फ्रॉम पेरेंट्स, मदर एंड फादर. लेकिन वी कैनॉट ओन द soul's future, we cannot own the soul's destiny. हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं. क्यों? हम क्यों गाइड कर सकते हैं उसको? सिर्फ हम उसको सही और गलत बता सकते हैं, राइट? लेकिन उसको जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक हमारा सही और गलत उसको समझ नहीं आएगा एज अ पेरेंट, राइट? राइट. इन द सेम मैनर जो मेरे साथ में पास्ट में हुआ, मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर क्यों नहीं ले सकता हूं? क्योंकि हर एक आत्मा की डेस्टिनी वो अपने आप से लिख करके आती है. जैसे कर्म किए होते हैं, चाहे वो 1 साल पहले किया हो, 10 साल पहले किया हो, 2 साल पहले किया हो. और कुछ लोग अगर पास्ट जन्म को मानते हैं या प्रीवियस बर्थ को मानते हैं, तो पिछले जन्मों में भी कर्म किए हैं. लेकिन उसको अगर हम छोड़ दें, हम इसी जन्म की बात करें अगर, तो हम देखते हैं कि हाँ, पिछले 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 35 साल, जो भी उम्र हो, जिसके साथ भी हमारा कुछ एनकाउंटर हुआ हो जो कि हमें इतना अच्छा नहीं लगा, या जिसकी हर्ट्स है हमारे अंदर, तो उसमें मेरा कितना कंट्रोल था, वो किस पे डिसाइड करते हैं कि उस आत्मा ने अपने जीवन में कैसे कैसे कर्म किए हैं. तो एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे लाइफ में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, क्लोज फैमिली मेंबर का, और अगर मैं सोचूं कि काश मैंने उसको पहले बुला लिया होता, काश मैं पहले पहुंच गया होता, काश मैंने सही टाइम पे फोन कर दिया होता, ये तो मेरे अनुसार हो गया ना, राइट? ये तो मेरे अनुसार हो गया, राइट. लेकिन उस आत्मा ने कैसे कर्म किए कि उसको उस समय वो हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी तो उसके कर्मों के हिसाब से हो गया. जैसे उसने कर्म किए वैसे उसको फल मिलेगा. एज वी सो, सो शैल वी रीप. फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ मेरे एक क्लोज फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड है मेरी, उनकी मदर बहुत ही सिक है अभी. वो एक सिटी में रहती है, वो किसी और सिटी में रहती है. ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपका कोविड-19 चल रहा है, राइट? अभी ट्रैवलिंग करना भी दोनों के लिए सेफ नहीं है.
और उनकी जो मदर, उनने ऐसे कर्म किए अपने लाइफ में कि उनके जो हस्बैंड भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे, उनके आसपास के रिलेटिव्स भी उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, ना फाइनेंशियली सिर्फ कर पा रहे हैं लेकिन फिजिकल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सोचो, जैसा हम किसी को जो देंगे हमें वही तो वापस रिटर्न होके आता है ना। राइट। अगर मैंने किसी को किसी समय पर राइट टाइम पे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्प किया हो इनफ, तो हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कि वो पर्सन मेरे लिए भी उस समय जब मेरी ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे को वो रिटर्न मिले, कि मेरे को भी वैसा सहयोग मिले। अब उनकी मदर को वो नहीं मिल रहा है, तो अब जो डॉटर है वो क्या कर सकती हैं? क्या वो सारा ब्लेम अपने ऊपर लेंगी? नो। लेना ठीक रहेगा? ना, बिल्कुल भी नहीं। वाई? बिकॉज किसने क्या कर्म किए हैं ये देखना भी जरूरी है ना। राइट राइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस यस आई डू। या नाउ टेल मी वन थिंग। या प्लीज। एक चीज बताइए आप मुझे। नाउ यू आर saying that it is necessary to visit the past, revisit the past and heal it and release it. Now, Right. if I try to forget what happened, will that be a right approach? Actually, it is very difficult to forget what has happened, to be very frank with you. Why? Let us explore this. Again, it comes back to understanding the basic foundation of this chit chat which we are happening is that we are talking about souls over here. हम आत्मा की बात कर रहे हैं जी। अब ये तो कोई दाग तो नहीं है कपड़े पर लगा हुआ जो कि हमने साबुन से मिटा दिया, वो तो फिजिकल एस्पेक्ट आ गया कि शरीर के ऊपर कोई कट हो गया, कोई चोट लग गई तो उसको भी क्या होता है 10-15 साल के बाद में वो शायद वो स्कार भी हट जाए, या हमने उसके ऊपर कुछ लेजर थेरेपी कर दी या लेजर ऑपरेशन कर दिया, स्कार को हमने गायब कर दिया। ये तो बात हो रही है एक आत्मा की। And since soul is not a materialistic being, soul is not made up of any of the 5 elements, जैसे कि एक बॉडी बनी हुई है, जैसे कपड़ा बना हुआ है जो कि फट जाता है ना। आत्मा के ऊपर भी चोट होती है, छोटी सी कट लगती है, लेकिन इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ अ फिजिकल, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ मेमोरी, एंड दैट मेमोरी कैन नॉट बी इरेज थ्रू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 साल पहले, आप या 15 या 20 साल पहले जब आप छोटे बच्चे थे, जो भी थे, आपने कुछ चीजें एक्सपीरियंस करी हैं जो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स उस समय आपके आसपास ना हुए हों, एंड वो मेमोरीज हैं आपके पास में जो कि आपने हो सकता है फ्रेंड्स के साथ में एक्सपीरियंस करी हो, लेकिन अभी तक आपने वो चीज अपने पेरेंट्स को नहीं बताई हो, राइट? लेकिन वो एक तरीके से एक चित्र के रूप में, इन अ फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, इट इज देयर विद इन यू। ओके। जिसको हम कहते हैं चित्रगुप्त। ओके। चित्रगुप्त मीन्स ऐसा वो चित्र है जो कि गुप्त है, जो कि सिर्फ आपके माइंड के या आपकी आत्मा के प्रोजेक्टर पे ही है सिर्फ, विच ओनली यू कैन प्रोजेक्ट whenever you want to project it. You can rewind your life's movie and you can project it in front of your mind's eye. Right. Nobody can see it, but it's a non-physical form of a projector. जैसे हमारे फिजिकल प्रोजेक्टर्स होते हैं जो कि स्क्रीन पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एंड वहां पे 10 लोग बैठे दे सकते हैं वो मूवी को। लेकिन आत्मा क्या करती है? आत्मा के अंदर ताकत है कि इट कैन क्रिएट अ प्रोजेक्टर इन फ्रंट ऑफ इट्स माइंड्स आई। हम ऐसे डीपली उसमें जा सकते हैं कि हम उसको अगर इरेज करना चाहें तो हम इरेज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। दैट मीन्स आई कैन एडिट इट। Okay. Edit doesn't mean that I can go back and meet the same people and I can replay that same drama and I can say okay आप ये बोलो मैं ये बोलता हूँ, आप ऐसे मत बोलो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। That cannot be done. But what I have done 10 years 15 years back with that same person or same situation, let's take a person, if I meet that person again, provided that person is still there, I can talk to that person. Yes. I can ask for forgiveness from that person. I can say, I'm very sorry, that time I did not know, I did not understand law of karma. I have been keeping this hurt inside me. And I can do what? I can put a band-aid onto it. I can put some malam onto it. मैं कुछ medicine लगा सकता हूँ उसके ऊपर. Okay. Right? But I cannot erase it.
I cannot delete it and I cannot forget it, but I can change my feelings towards it. जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे घर में आज ही कुछ बात हो गई, आपने कुछ ऊंची आवाज में कुछ बोल दिया, आपने किसी को घर में किसी को बोल दिया, एंड 10 मिनट बाद में आप गए एंड आपने उनको सॉरी बोला, मेरा वो मीनिंग नहीं था, मैं किसी और चीज में एंगेज था, कोई और चीज में को इरिटेट कर रही थी, इसलिए मैंने आपको ऐसे ऊंची आवाज में बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी. तो आपने जो 10 मिनट पहले किया, क्या आप उसको इरेज कर सकते हो? इरेज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो कहा, यू नो, ट्रांसफॉर्म. यस यू कैन ट्रांसफॉर्म इट. उस पर आप मलम लगा सकते हो, उसके ऊपर आप बैंडेज लगा सकते हो. सो जब आपने मलम लगाई, बैंडेज लगाई, सो वो सिचुएशन की फीलिंग्स क्या हुई, चेंज हुई कि नहीं हुई? हाँ बिल्कुल, है ना. सो आई कैन चेंज दैट सिचुएशन फीलिंग्स इमीडिएटली. सो दैट व्हाट हैपेंस इज माय गिल्ट गोज अवे, आई बिकम अ लाइटर पर्सन. There is good exchange of energy and frequency between those two people again. And also I can restart the same relationship on a different platform now, right, on a positive platform. So that right. is possible, provided that person is still around. Now if that person is still not around, let's say that person is not alive and you were not able to reach and that person went through an accident or something, then the only way is that soul has not died for a very simple understanding of spirituality. You can still ask for forgiveness, you can still ask for a sorry to that soul who has departed. That is also a possibility. Okay. Yeah. Okay. Right. Anything else? Anything else means I have lot of lots to talk to you about this. Now I have to go somewhere. Surely. Okay. Surely. So can we continue this conversation after some time? Surely. You let me know. Just send me a message. Okay, fine. Just send me a message on WhatsApp and then I'll get back to you.